Actually, this chapter is in class 10. Okay, हम लोग क्लास 10 में सीबीएसई बोर्ड में ये चैप्टर को पढ़ते हैं, बट हमारे स्कूल के जो फाउंडेशन कोर्स बुक है उसमें क्लास 8 में ये बात दी हुई है. हाउ मेनी इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स? कैन यू टेल हाउ मेनी इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट दे आर? Okay, heating effect, chemical effect and magnetic effect. Right boys? So heating effect जो होता है उसमें जो बल्ब वगैरह, अभी ठंडा का मौसम है तो हम लोग हीटर वगैरह जो है प्रयोग करते हैं, है ना, तो वो भी इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट का, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके बारे में. तो सबसे पहले भाई कि मैग्नेट होता क्या है इसके बारे में जानेंगे. व्हाट इज मैग्नेट? व्हाट वी कॉल मैग्नेट? तो मैग्नेट वो सब्सटेंस होता है जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस को, मींस मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने का काम करता है, हम उसे मैग्नेट कहते हैं. ठीक है, यानी कि मैग्नेट आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट अदर्स मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेट. ओके, सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन. Those substances which attract other magnetic substance like iron is called magnet. Okay, जैसे आयरन को, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी जो सब्सटेंस है उसको अट्रैक्ट करने का काम जो होता है वो मैग्नेट का काम है. देखो बच्चों, आयरन Fe, कोबाल्ट CO and nickel, that is Ni, are called ferromagnetic substance. मीन्स हम लोग आयरन को, कोबाल्ट को, निकेल को क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं. राइट, पॉज. केमिकल फॉर्मूला फॉर मैग्नेट इज कॉल्ड ferrous oxide. What we called? Ferrous oxide. Right, ferrous oxide. Chemically we can write Fe3O4. So this is the chemical formula of magnet, that is called, chemically magnet is called ferrous oxide, whose formula is what? Fe3O4. Okay, so these are the basics things about the magnet. Right, so we had studied about the magnet which attracts the ferromagnetic substance is called magnet. Right, so moving further we will discuss the properties about magnet. What are the properties? Properties of magnet. Properties of magnet. Number one property, before reading about the properties, we will see how the magnet is. Okay, if I draw a bar magnet, this is called bar magnet. What we called? Bar magnet. Bar magnet, this is called a bar magnet.
any piece of magnet have two ends. This is two ends, and that ends are called the poles of the magnet. What we called? Poles of the magnet. Suppose we are going to put this side as a north pole, and it is indicated by capital N, and this side is indicated by south pole, that is indicated by capital S here. Okay, so these are the simple है ना image, simple figure of the magnet. What is the property of magnet? Suppose, first property, suppose if we take a two magnet like this, here north pole and south pole, and another one magnet also here south pole and north pole, then these two magnets going to attract each other. यहां पर बच्चों अट्रैक्शन मिलेगा हमें, है ना। जब दो मैग्नेट अपोजिट पोल्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं तो क्या करता है? अट्रैक्शन करता है। ये क्या है? आपस में अपोजिट पोल्स का है, अपोजिट पोल्स इंटरैक्ट, है ना। अपोजिट पोल्स इंटरैक्ट करेंगे तो क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। सपोज अनदर वन मैग्नेट I am taking like this, north pole and south pole, and the second magnet is having north pole and south pole like this, and these two magnets are facing with the same like poles. We can say like poles interacting. Okay, when like poles interacting, every time we saw what? Repulsion. Every time we saw repulsion. In our next slide we will read why repulsion is happening here and why attraction is happening here. In next slide we will read about that. Okay, so look here, these are the basic property of the magnets. When we take two magnets, then these basic properties we see attraction and repulsion. One more question I had asked yesterday in your class, that what is a property by which we can tell that particular substance is genuinely a magnet? क्या वो attraction से हम बता सकते हैं कि क्या वो magnet है? क्या हम repulsion से बता सकते हैं कि वो magnet है? Tell. Suppose एक हम substance लिए हैं और वो क्या है कि रैप किया हुआ है, हमको पता नहीं कि उसके अंदर में मैग्नेट है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है कि आयरन सब्सटेंस है। ठीक है, यदि हम रैप किए हैं, ठीक है, रैप किए हैं और हमको अंदर में किसी को नहीं पता है, हम गौतम शर्मा को ले लिए भाई कि हम रैप किए हैं और गौतम शर्मा को नहीं पता है कि इसमें मैग्नेट है या आयरन सब्सटेंस है। हम एक दूसरा मैग्नेट ला रहे हैं तो मैग्नेट क्या हो रहा है? और वो हैवी ऑब्जेक्ट्स है। हम मैग्नेट वहां पर ला रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो अट्रैक्ट हो जाने का काम कर रहा है। या हम फिर क्या हो रहा है कि एक ऐसा सीन आ जा रहा है दूसरे केस में कि रिपल्सन हो जा रहा है। तो वो कौन सा श्योर टेस्ट है, कौन सा वो एक्टिविटी है जिसके कारण से हम ये बता सकते हैं कि जो रैप्ड सब्सटेंस है वो मैग्नेट है। रिपल्सन जो होता है बच्चों, रिपल्सन जो होता है, ये स्टार मार्क देकर आप लिख लीजिएगा, माइंड में रखिएगा। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट अबाउट मैग्नेट। जैसे देखो, हम यदि मैग्नेट लिए हैं और हम यहां पर आयरन पिल्स ले लिए, ऐसे आयरन है ना, आयरन मेल्स है, तो ये तो अट्रैक्ट हो जाएगा, ये तो अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? ये अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? दिस इज योर हाईलाइटेड थिंग्स। ये अट्रैक्ट हो जाएगा, ये मैग्नेट है हमारा और ये क्या है? आयरन है, आयरन नेल्स है और ये मैग्नेट है। ओके, अनदर थिंग कि ये मैग्नेट हमने लिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हम इसको ऐसे ऐसे क्या कर दिए? रैप कर दिए, ये ढक दिए इसको। ठीक है, हम एक और मैग्नेट लिए हैं, ठीक है,
ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया, ये हमको हाथ में, ये मेरे हाथ में, और ये रैप्ड है, तो ये कभी भी अट्रैक्ट होगा नहीं होगा। ये क्या करेगा? रिपेल करने का काम करेगा। ये क्या करेगा? रिपेल करने का काम करेगा। मैग्नेट ही तो है जो रिपेल कर रहा है, मैग्नेट ही तो है जो रिपेल कर रहा है ना। तो मैग्नेट का जो रिपल्सन प्रॉपर्टी होता है ना, वही श्योर टेस्ट करता है कि भाई क्या है, क्योंकि ये दूसरा मैग्नेट हम ला रहे हैं तो रिपेल कर रहा है, हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को ला रहे हैं तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो अट्रैक्शन तो जेन्युइनली है मैग्नेट का। तो क्या कोई भी सब्सटेंस यदि अट्रैक्ट हो जा रहा है तो मैग्नेट थोड़ी ना है। एक मैग्नेट को हम दूसरे मैग्नेट के पास में ला रहे हैं तो वो रिपेल करने का काम कर रहा है। तो रिपल्सन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? एक्चुअल टेस्ट करता है कि भाई वो वही रिपल्सन ही हमें बताएगा कि जो रैप्ड सब्सटेंस है वो क्या चीज है? मैग्नेट है। ओके, पाउच इन प्रीवियस स्लाइड वी रीड दैट, इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि भाई इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा रिपल्सन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। हमने बताया कि रिपल्सन और अट्रैक्शन क्यों होता है, रिपल्सन और अट्रैक्शन क्यों होता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, in short we can write MFL, but in class 11 it is indicated by letter B, कैपिटल B से ये इंडिकेट किया जाता है। किसमें? क्लास 11th में। जब आप क्लास 11th में इसी बात को आप पढ़ेंगे, इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको इंडिकेट क्या चीज से किया जाता है? लेटर बी से इंडिकेट किया जाता है। ओके, नाउ आई एम इरेजिंग दिस थिंग्स, field lines, right? What is magnetic field lines? We are going to draw. Suppose this is our magnet, this is our magnet, this is our magnet, and here north pole and here south pole. तो बच्चों बाय कन्वेंशन इसका कोई बाय कन्वेक्शन, ठीक है, मतलब कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा माना है और हम उसको अभी भी मान रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये होता है, यहां पर ये हो रहा है भाई कि, और इविंग्स एक थे व्यक्ति, इविंग्स बाबा, उन्होंने बताया था अरेंजमेंट, ठीक है, किसका? मॉलिक्यूलर थ्योरी उन्होंने दिया था। ओके, तो वहां पर से हम लोग क्या है कि बाय कन्वेंशन ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये एक इमेजिनरी लाइंस होता है। ये क्या होता है? इमेजिनरी लाइंस होता है। जैसे कि हम लोग ग्लोब में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, है ना, ग्रिड्स पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो क्या वो हमारे अर्थ पर ऐसे ड्रॉन है? नहीं है, वो क्या है? एक इमेजिनरी लाइन होता है। उसी प्रकार से हम यहां पर भी एक इमेजिनरी लाइंस खींचने वाले हैं, ड्रॉन करने वाले हैं, जिससे पता चलेगा कि वाई लाइक पोल्स repel each other and unlike poles attract each other। बच्चों हमेशा नॉर्थ पोल से, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकले हुए होते हैं, राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है हमेशा ऐसा निकला हुआ होता है, इमर्ज आउट होता है नॉर्थ पोल से। और साउथ पोल में क्या होता है? साउथ पोल में वो इमर्ज इन करता है। साउथ पोल में क्या करता है? वो इमर्ज इन करता है। और ये ऐसा हुआ, और यहां से जब ये निकलेगा गाइस, तो मैं यहां से एक ऐसे भी लाइन बना सकता हूं,
एक ऐसे बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ, बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कंटिन्यूअस होता है और क्लोज होता है। क्या ये कंटिन्यूअस है, क्या ये क्लोज है? मैं बस यहां पर एक है ना बेसिक्स डायग्राम आपको मैं बता रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, अभी ये कंप्लीट नहीं है। लेकिन यहां से भी आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कंजस्टेड कहां पर है? क्या यहां पर कंजस्टेड है, क्या यहां पर कंजस्टेड है, क्या इधर कंजस्टेड है, क्या यहां पर कंजस्टेड है? मतलब कि काफी कोलाइड हो रहा है, काफी ही घना हो रहा है, डेंस हो रहा है। कहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस हो रहा है? पोल्स के पास में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? पोल्स के पास में हो रहा है। इस बात से भी हमें एक प्रॉपर्टी पता चलता है मैग्नेट का। वो प्रॉपर्टी क्या पता चलता है कि पोल्स के पास में मैग्नेट का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मतलब कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है? वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है? पोल्स पर होता है। कहां पर होता है? पोल्स पर होता है। ये साफ आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नजर आ रहा है। अब मैं इसको कंटिन्यूअस ड्रॉ कर रहा हूं रेगुलर। तो बच्चों ये ऐसे आएगा, ये ऐसे कनेक्ट कर गया, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे कनेक्ट कर गया। ये कंटिन्यूअस अभी है लेकिन ये क्लोज नहीं है। क्लोज मतलब क्या हुआ? क्लोज ये ऐसे शामिल हो जाएगा, सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। बच्चों आप क्या देख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यही क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके पॉज दैट। के बाहर हम देख रहे हैं कि बाहर निकल रहा है किधर से? नॉर्थ पोल से बाहर निकल रहा है ना। डायरेक्शन यहां पर हम लोग अब लिखते हैं डायरेक्शन, राइट। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नंबर 1, आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बच्चों वह इमर्ज कर रहा है, इमर्ज आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल। कैन वी से नॉर्थ पोल? क्या मैग्नेट के बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? नॉर्थ पोल टू किधर? साउथ पोल। नॉर्थ पोल से किधर? साउथ पोल। बट यहां पर देखो बच्चों, इधर से ये निकल रहा है, इधर से ये निकल रहा है और किधर जा रहा है? देखो यहां पर इधर से ये निकल रहा है और ये किधर जा रहा है? देखिए यहां पर इसके अंदर जा रहा है, इधर साउथ पोल में जा रहा है। देखो साउथ पोल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और मैंने बोला कि कंटिन्यूअस होता है, तो मैग्नेट के अंदर ये किधर से ट्रेवल कर रहा है? साउथ से नॉर्थ जा रहा है ना। मैग्नेट के अंदर साउथ से किधर जा रहा है? नॉर्थ जा रहा है। तो बच्चों सेकंड जो डायरेक्शन होगा मतलब कि इनसाइड मैग्नेट व्हाट इज द डायरेक्शन? इनसाइड मैग्नेट MFL runs from south to north pole. Can we say? क्योंकि ये कंटिन्यूअस होता है और ये आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा गाइज। ऐसा नहीं है कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ला दिए और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लाके और यहां पर इंटरसेक्ट कर दिए। ये कभी नहीं हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करने का काम करता है, राइट। तो एक पॉइंट पर यदि मैं यहां पर कंपास लाऊं, तो कंपास के निडल में भी क्या होता है? कंपास का निडल भी जो होता है बच्चों वो मैग्नेट के रूप में बिहेव करता है, ठीक है। तो क्या वो मैग्नेट जो होगा, कंपास का जो निडल होता है लाइक दैट, ऐसे, तो ये हमेशा ज्योग्राफिकली नॉर्थ और साउथ के पोल में क्या होता है? फ्रीली हैंग रहता है हमेशा। तो बच्चों यदि हम इसी कंपास को यहां पर लाएं तो एक साथ क्या इसको पॉसिबल है कि अपने निडल को तोड़ ताड़ के एक ही साथ में दो डायरेक्शन दिखा दे एक साथ? कभी नहीं ना हो सकता है दो डायरेक्शन। तो यहां पर एक टेंजेंट हम बनाते हैं भाई, यहां पर ऐसे टेंजेंट बना दिए। ये टेंजेंट ही क्या करता है? डायरेक्शन बताने का काम करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ, लेकिन
मैग्नेटिक इफेक्ट का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट बताने का काम कर रहा है। तो टेंजेंट तो हम एक साथ थे, है ना, पॉसिबल आपका मैग्नेट में ये मैग्नेटिक कंपास में जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ना, वो आपका इंटरसेक्ट आपस में कभी नहीं करता है। ये कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा आपस में, कभी नहीं ये इंटरसेक्ट करेगा आपस में, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है आपस में, राइट। लाइंस का वो मैग्नेट के बाहर में नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल की तरफ जा रहा है, और मैग्नेट के अंदर में साउथ से किधर जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है। ये ध्यान देना है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। राइट डाउन ना, व्हाई आर यू लाफिंग, क्योंकि आएंगे, है ना। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, है ना। और यही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यही हमने बताया आपको क्या कि वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो जब वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा गाइस, तो वह सेम एनर्जी का है ना। दूसरी बात क्या है आपको ध्यान देना है, क्योंकि डायरेक्शन उसका सेम रहेगा। तो हमने अभी एक और बताया कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो क्या हम एक मैग्नेट को देखो, एक मैग्नेट ऐसे लाया और अनदर मैग्नेट है इस प्रकार से, दूसरा मैग्नेट है इस प्रकार से, है ना, इसका भी नॉर्थ और इधर भी नॉर्थ। तो ये भी ऐसे निकालने का काम कर रहा है और ये भी ऐसे निकालने का काम कर रहा है कि नहीं करेगा, करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये सेम एनर्जी का होगा, ये क्या करेगा, आपस में रिपल्सन करने का काम करेगा। ये क्या करेगा, रिपल्सन करने का काम करेगा। क्लियर। तो वही बात जो है आपका यहां पर, ये ऐसे काहे हो जा रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। करंट जो होता है बच्चों, वो क्या करता है कि जब भी यदि कंडक्टिंग पाथ में करंट ट्रेवल कर रहा है, तो वह अपने चारों ओर क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करता है। मतलब कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी को शो करेगा। यदि आप कोई दूसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को ला रहे हैं वहां पर, तो वो अट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, है ना, और उन्होंने दिया एक क्या, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जो होता है वो ऐसा कुछ होता है, देखिए, राइट हैंड थंब रूल मतलब कि अब ये देख लो कि एक कंडक्टिंग वायर है ऐसे, और यदि हम इसको, इसकी डायरेक्शन ऐसे, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो बच्चों इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कैसे जनरेट होगा। तो हमें लेना है अपना राइट हैंड, दिस इज माय राइट हैंड। अभी हम ये राइट हैंड लिए और ये जो कर्व हुआ, ऐसे कर्व ऐसा बनेगा ना, थंब ऐसा, फिंगर रहेगा ऐसे, ये फिंगर हो गया ऐसे, तो ये हो गया हमारा थंब। ये क्या हो गया, थंब। थंब जो होगा बच्चों, ये हम इंडिकेट क्या करेगा, ये इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ, इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। बट ये जो फिंगर का जो हमारा कर्ल होगा, ये फिंगर्स का, फिंगर्स कर्ल मतलब हम इसको जब घुमाएंगे ऐसे, है ना, ये बताएगा हमको, इंडिकेट करेगा ये किसके बारे में, इंडिकेट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये इंडिकेट करेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बच्चों हम मान लो कि ये हमारा जो लिखने वाला है ना, ये डायरेक्शन शो कर रहा है ऊपर की तरफ करंट का। हमने थंब को ऐसे प्लेस कर दिया, ये किधर हमारा कर्ल घूम रहा है, कर्ल ऐसा घूम रहा है, कर्ल ऐसे घूम रहा है, कर्ल ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं ऐसे कर्ल। यानी कि आपका यहां पर बाहर से किधर जा रहा है, ये देखो, बाहर से किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। बाहर से किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इनवर्ड और आउटवर्ड एक डायरेक्शन होता है ना। सो वी विल रीड, थैंक यू, वी विल रीड इन द